یہ مسجد کا کام ہے اور یہ مسجد کا وقت ہے. یہ جو سیکھنے کے لیے ان سے لے رہا ہے لیکن یہ اس دعوت کے عنوان سے نہیں ہے, یہ سیکھنے سکھانے کے عنوان سے ہے. سیکھنے سکھانے کے عنوان سے کہ تعلیم فضائل کی تعلیم کے لیے وقت ہے اور اس کے ساتھ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کو علماء سے کیا کر لے, معلوم کر لے, ان سے سیکھے. اس کے لیے ہر ایک آدمی اپنے طور پر نظام بنا دے. نظام بنا, یعنی ہمارے ہاں تو جماعت کے اعتبار سے جو حلقہ ہے اجتماعی طور پر وہ تو تعلیم کا ہے, فضائل کی تعلیم کا ہے. لیکن اب یہ قرآن سیکھے, اپنے نماز ٹھیک کر لے, اپنے مسائل معلوم کر لے, یا جس شعبے میں بھی ہو اس کا علم لے, اس کے لیے بندہ اپنا نظام بنا دے. اپنا نظام بنا دے. تو گویا یہ جو دین تب آئے گا کہ جب ایک طرف یقین میں ترقی ہو دعوت کے ذریعے سے, دوسری طرف فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ان اعمال کا شوق بڑھے, ان اعمال پر جو وعد ہے اس کا یقین بڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم لے, اس کا علم لے. تو اس کی طرف فضائل تو اچھا, یہ تو اجتماعی طور پر ہے. تعلیم کے حلقے میں یہ پوری جماعت بیٹھے, جیسے نکلنے کے زمانے میں پوری جماعت تعلیم میں بیٹھتی ہے, تو اس طرح یہ جو 10-15 ساتھی جو مسجد کی جماعت ہے یہ پوری جماعت تعلیم میں شریک ہو. ان کے ساتھ اور لوگ جو ہم نے محنتیں کی ہے, انہوں نے ارادے کیے ہیں, ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا یہ کام. لیکن ان میں سے کسی کا ناغہ نہ ہو کہ ہاں ہماری مسجد میں تو تعلیم ہو رہی ہے لیکن کبھی 5 بیٹھتے ہیں, کبھی 7 بیٹھتے ہیں, کبھی 10 بیٹھتے ہیں, کبھی میں بیٹھتا ہوں, کبھی نہیں بیٹھتا ہوں. تو ایک کہ مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ اجتماعی تعلیم میں شریک ہونا, اور یہ ان دونوں کتابوں سے پڑھا جائے. صرف فضائل اعمال سے نہیں بلکہ فضائل صدقات سے بھی پڑھا جائے, دونوں حصوں سے. اور پڑھنا مقام پر چونکہ تو بہتر یہ کہ ترتیب کے ساتھ ہو, مثلا فضائل نماز میں جو پہلی 2 حدیثیں پڑھ لی فائدے کے ساتھ, تو اگلے دن جو پڑھے وہ تیسری چوتھی حدیث پڑھے, اس کے بعد جو پڑھے تو 5ویں 6ویں حدیث پڑھے, تاکہ یہ پورا رسالہ یہ پورے ہم سنیں اور اس کو یعنی پڑھیں اور سنیں. اس طرح یہ یعنی صرف 2-4 جگہ ہیں وہیں سے روز پڑھنا نہیں, پوری کتاب تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے. تو یہ تو, اور محلے والوں کو اس تعلیم میں شریک کرنا, جیسے پہلے بات عرض کی تھی. اس کے ساتھ اپنے گھر کی تعلیم ہے, اپنے گھر کی تعلیم, یہ بھی مسجد کے کام میں سے ہے. دونوں تعلیمیں. گھر میں ایک جماعت ہے 8-10 افراد کی, 8-10, اس میں مستورات بھی ہیں, اس میں مرد بھی ہیں, اور اس میں بچے بھی ہیں. اور جس یہ بات بار بار بیانات میں بھی سامنے آ رہی ہے, مذاکرہ میں بھی کچھ بات ہو گئی کہ ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہے کہ اپنے بچوں میں, اپنے اہل و عیال میں دین یعنی ان کو دین پر لانا اور ان کے لیے دینی ماحول مہیا کرنا, یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ ان کی ذمہ داری. اور گھر کا ہر ایک فرد وہ اس مبارک کام کو اپنا کام سمجھ کر زندگی گزارے. تو اس کے لیے ترتیب کیا ہے؟ اس کے لیے یہ کہ ایک وقت ایسا ہو جس میں پوری جماعت گھر کے شریک ہو, تعلیم میں کیا ہو, شریک ہو. اچھا, جب یہ تعلیم میں شریک ہے تو اس میں بھی وہی بات آ جائے گی. فضائل قرآن سن رہے ہیں تو قرآن کا شوق بڑھے, فضائل نماز سن رہے ہیں تو گھر کا ہر ایک فرد نمازی بنے, مستورات میں سے, بچوں میں سے. گھر کا ہر ایک فرد ذکر پر بڑھ جائے, ذکر بھی کرے. تو گویا اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو, اس گھر میں ذکر بھی ہو, اس گھر میں رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا بھی ہو, اس گھر میں یہ سیکھنے سکھانے کے بارے میں عرض کر لوں کہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں, ہر ایک مرد عورت پر جو قرآن سیکھنا فرض ہے تو اس کا نظام بنا دے اپنے گھر میں. بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کا جو بالغ افراد ہیں, جو
وہ सीख कर अपने बच्चों को सिखलाए, अपने मस्तूरात को सिखलाए। अगर ये नहीं है तो खुद इंतजाम कर ले कि मेरे बच्चे कुरान सीखे। कहां सीखे? कुरान सीखे तो कहां सीखे? तो अपने मस्जिद में कोई कारी है, मुअल्लिम है, कोई मकतब है, कोई, तो उसमें उनका राब्ता बना दे ताकि ये कुरान सीखे बगैर न रहे, कम से कम कुरान तो सीखे। तो इसका एहतमाम हो। बच्चे अभी कुरान सीखे। दीन सीखने के लिए जो मसाइल हैं तो मर्दों के जरिए से उलमा से पूछ कर मस्तूरात वो इल्म ले जिसकी जरूरत हो, जिसकी क्या हो जरूरत हो, तो वो मसाइल मर्दों के जरिए से पूछवाए जाए मुफ्ती हजरात से, और वो उनको बता दे कि मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, ताकि इस घर में इस तालीम के जरिए से फजाइल कुरान की तालीम है तो घर का हर एक फर्द कुरान पढ़ना सीख ले। फजाइल जिक्र की तालीम है तो सबकी तस्बीहात पूरी हो रही हो। फजाइल रमजान की तालीम है तो घर का कोई फर्द बगैर रोजे के न रहे। फजाइल सदकात की तालीम है तो जिस पर ज़कात फर्ज है वो इस फरीजे को अदा करे। फजाइल हज की तालीम ताकि फरीजा अदा हो जाए। इस तरह जो भी आमाल है तो उन आमाल के फिजा बने। तो एक तरफ तो इन्हीं किताबों से घर में तालीम हो और इसके साथ साथ मुज़ाकरा हो 6 नंबर का वक्तन फौक्तन, ताकि जो भी मस्तूरात हैं हर एक 6 नंबर में बात कर सके, दावत दे सके। ये मुज़ाकरा सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता बल्कि इन सिफात का फिक्र पैदा हो कि ईमान का, नमाज का, इन अमाल के हमारे अंदर क्या हो, फिक्र हो और इसमें हम आगे बढ़े। तो उसके वक्तन 6 नंबरों का मुज़ाकरा है और इसके साथ ये अपने घर में तालीम है और मसाइल उलमा के जरिए से, मर्दों के जरिए से मालूम करके वो अपने घर वालों को बताना और घर में हर काम सुन्नत के मुताबिक हो। ये सब पूरे दीन के ज़िमन में आ जाता है। खाना सुन्नत के मुताबिक, सोना सुन्नत के मुताबिक, इस तरह लिबास सुन्नत के मुताबिक, शक्ल, लेकिन एक एक चीज को गिनना ये तो बहुत सारे हैं। ये जो 6 नंबर है इसके जरिए से इस्तेदाद पैदा हो जाते हैं पूरे दीन पर चलने का। तो दीन का ताल्लुक सिर्फ नमाज के साथ नहीं है, दीन का ताल्लुक अपने इन सब मामलात, मुआशरात सबके साथ है, लेकिन वो तब जिंदगियों में आएगा मर्द और औरत के जब ये खूबियां वजूद में आ जाए। इसलिए जोर हो इन्हीं अमाल पर, इन्हीं अमाल के जरिए से बाकी जिंदगी उसमें वजूद में आ जाती है। तो एक तो मस्जिद की पूरी जमात मशवरा के लिए वक्त, रोजाना मुलाकातों के जरिए से ये तकाज़े पूरा करना और उसके साथ ये अपने तालीम का एहतमाम करना। अब जब रोजाना बंदा मशवरा करे, रोजाना दावत दे, रोजाना तालीम करे और रोजाना जिक्र करे, रोजाना इबादत है और इसके साथ नवाफिल का एहतमाम करे और इसके साथ ये अपने कारोबार में कमाना और खर्च ये शरीयत के मुताबिक हो, तो इसके दिल के ताल्लुक अल्लाह के साथ बढ़ता चला जाएगा। अब हफ्ते में एक दिन उमूमी गश्त है, एक दिन अपने मोहल्ले में उमूमी गश्त है। ये गश्त इज्तिमाई है, ये 2-2, 3-3 की जोड़ियां नहीं है, बल्कि मस्जिद की जमात के एतबार से, उन्वान से ये हफ्ते में एक दफा है। वजह क्या है कि लोगों को जमा करके बात करना ये रोजाना नहीं होता है, वरना मलल पैदा हो जाएगा, उकताहट पैदा हो जाएगी। जो हमारे हजरात ने कुरान और सुन्नत को देखकर उसका इस्तेमाल किया है, तो वो क्या है कि ये रोजाना दावत की बात घर घर तो रोजाना है वहां पर, लेकिन लोगों को ये मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर बात करना ये हफ्ते में कितनी दफा है? हफ्ते में एक दफा है। इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसमें 8-10 साथी हो, यानी जमात मजबूत हो और ये घर घर पर मुलाकातें करें, लेकिन यहां मुतकल्लिम मुख्तसर बात करके वहां बैठकर तफसील से बात नहीं करती जैसे रोजाना की मुलाकातों में है।
مختصر بات کر کے ان سب کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنی ہے کہ سب مسجد میں آ جائیں. اب مسجد میں جب وہ آئے تو ان کے استقبال کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے, ذکر دعا کے لیے بھی آدمی مقرر ہو, بیٹھ کر بات کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے, بیان کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے. تو اس محلے میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا. اجتماعی جو بات ہے, ہماری کوشش اس بات کی ہے کہ اجتماعی باتیں مسجد میں ہو, مسجد کے ماحول میں ہو. یا مثلا کسی مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض وجوہات سے, تو بیٹھک میں ہے تو وہ بھی ایک قسم کی مسجد کے حکم میں آتا ہے کام کے اعتبار سے, تو اس ماحول میں ہو, اسی ماحول میں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتماعی بات ہے اس کے لیے پہلے گشت ہو, پہلے کیا ہو, گشت ہو. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ گھروں پر مل سکتے ہیں. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں, یعنی نماز میں تعداد لوگوں کی زیادہ ہے نہیں. ہم دیکھیں گے اس کو مثلا عصر کی نماز کے بعد لوگ مل سکتے ہیں, تو ہمارا گشت عصر کے بعد ہے اور بیان مغرب کے بعد ہے. اور اگر ہمارا دیکھا کہ وہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں عصر کے بعد گھر پر لوگ نہیں مل سکتے ہیں, جس گھر پر بھی جاؤ کہتے نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, گھر پر نہیں ہے, گھر پر نہیں ہے, تو مغرب کے بعد گشت کر لے اور عشاء کے بعد بیان کر لے. اب یہ جو ہمارا گشت ہے یہ ہمارا ہفتے میں کتنی دفعہ ہے, ایک دفعہ ہے. لیکن اس کے لیے یہ جو ایک دفعہ کا گشت ہے یہ گشت پورے محلے کے لیے ہے, یہ ایک گلی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ مسجد کے ساتھ جتنے گلیاں ہیں ان سب کے لیے ہے کہ ان سب کو جمع کرنا. اب یہ تب ہو سکے گا کہ جب ہماری جماعتیں ایک نہ بنے, بلکہ ہماری جماعتیں کتنی بن جائیں, 3 جماعتیں بنے, 4 جماعتیں بنے. اس گلی میں ایک جماعت گشت کر لے, دوسری گلی میں دوسری جماعت گشت کر لے, تیسری گلی میں تیسری جماعت گشت کرے, تاکہ پورے محلے میں ہماری یہ ملاقاتیں ہفتے میں ایک دفعہ ہو. وہ تو 15 دن مہینے میں جو تفصیلی بات ان سے گھر پر ہوتی ہے, اور یہ صرف گھر پر حاضری دے کر مختصر بات کر کے ان کو مسجد میں جمع کرنے کی کوشش. تو اس میں ہماری یہ کوشش ہو کہ پورے محلے میں ہفتے میں ایک دفعہ. اب اگر ہم نے ایسا کیا کہ ایک دن ہم نے گشت کر لیا ایک گلی میں, دوسرا ہفتے ہم نے پوچھ لیا کہ اب کون سی گلی کی باری ہے, تیسرے ہفتے میں ہم نے, تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے میں ہمیں, اور بعض وقت تو مسجد کے ساتھ گھر بہت سارے ہوتے ہیں, تو ہمارا عمومی گشت تو ہفتے میں ایک دفعہ ہو گیا محلے میں, لیکن محلے والوں پر ایک دفعہ ہو گیا ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ ہوا. اور ہونا کیا چاہیے, تو اس کے لیے کیا شکل ہو کہ بس یہ ایک ہی جماعت ہی رہے, نہیں جماعتیں کیا بنانے. زیادہ تب ہوگا کہ جب ہمارے سب ساتھی گشت میں کیا ہو, گشت میں شریک ہو. جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب گشت میں شریک ہو, اور جنہوں نے وعدے کیے تھے, ارادے کیے تھے گشت سے پہلے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو جاؤ ایک دن پہلے, اسی دن, تاکہ ان کو ہم اپنے گشت میں اپنے ساتھ شریک کر لیں اپنے ساتھ. ورنہ گشت تو ہو جائے گا, 2-4-5 بندے کہتے ہیں الحمدللہ پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے, لیکن ہر ایک کا پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے. یہ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہے, یہ نہیں ہے کہ تبلیغ میں اس کا وقت لگا ہے بس. اور یہ الگ بات ہے کہ جماعت میں ایسے ساتھی زیادہ ہو جو اصول کے ساتھ گشت کر سکتے ہو, کیونکہ بعض کو تو مسجد میں بات کرنے کے سننے کے لیے بٹھا دیں, لیکن پورے محلے کے لوگ ہمارے ساتھ اس میں کیا ہو, شرکت کریں. تو اس کے لیے ایک درخواست ہے کہ روزانہ اپنے محلے ہفتے میں ایک دفعہ ہمارا عمومی گشت ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گشت کا وقت ہو یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے, تو جیسے میں نے تعلیم کے بارے میں بتا دیا, روزانہ ملاقاتوں کے بارے میں عرض کیا, مشورے کے بارے میں عرض کیا. اس طرح یہاں بھی اگر گشت کے وقت میں کوئی کام پڑ گیا, کوئی کام پڑ گیا, تو اس وقت گشت کو چھوڑ دینا چاہیے یا کام کو مؤخر کرنا ہے, گھر کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے, کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے, لیکن گشت کو مؤخر نہیں کرنا ہے. یہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا ثواب سے انکار نہیں ہے, لیکن کام وہ ہے
जो वक्त पर हो और जो तरतीब हो उस तरतीब पर किया जाए तो उसी का नाम काम होता है, उसी का नाम काम होता है। और जब वक्त पर ना हो, तरतीब के साथ ना हो तो उसका नाम काम नहीं होता है। वरना आप दुनिया में देखें, कभी दुकान में चला गया, कभी नहीं गया, कभी मुलाजमत में गया, कभी नहीं गया, तो इसको कोई काम कहा जाता है? तो जिस तरह दुनिया के मामलों में ये काम नहीं समझा जाता, तो दीन के मामले में हम इसी को काम समझे कि ये काम है। इसलिए भाइयों, दरखास्त है अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि बहुत बड़ी नेमत है, उसके लिए हम अपने तकाज़ों को मौखर करें। अच्छा, इसमें एक बात और करनी है, जब ये गश्त हमने कर लिया तो पूरा हफ्ता हमने मेहनत की है। हम हर गश्त से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालना चाहते हैं, हर गश्त से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालना चाहते हैं और इसी मस्जिद से निकालना चाहते हैं। जैसे कोई जमात किसी मस्जिद में जाने के बाद मुश्किल हो जाए तो 3 दिन वहां पर मेहनत करती है, तो उसी मस्जिद से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालती है नहीं निकालती? निकले या न निकले ये अलग बात है, लेकिन जमात के सामने तकाजा क्या होता है कि पूरे मस्जिदों से लोगों को जमा करके चिल्ला तीन चिल्ले की जमात तैयार कर दी, या इसी मस्जिद से मेहनत करती है, एक दिन में तैयार न हो जाए, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में जमात तैयार न भी हो जाए तो एक नदामत होती है या नहीं होती? और ये अंदर एक जज्बा बनता है कि दूसरे मस्जिद में जाकर मैं हमने जमात मेहनत करनी है, जमात तैयार करनी है, न करो। इस जज्बे के साथ दूसरे मस्जिद में नदामत के साथ तो पूरा हफ्ता हमने काम किया, जबकि इस मस्जिद में 15 पुराने हैं, वो ये तो मैंने 15-10 से शुरू कर दिया, किसी जगह 20 है, किसी जगह 40 है, किसी जगह 50 है, किसी जगह 100 है, किसी जगह 200, 300 तक है। लेकिन अगर देख लिया जाए कि हर मस्जिद हर गश्त से चिल्ला की चिल्ले की जमात निकल जाती है तो नहीं निकलती, अफराद निकलते हैं। तो हमारे सामने क्या हो कि चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालनी है, पूरा हफ्ता इसी नियत से हमने मेहनत करनी है। अब जमात नहीं निकली तो एक हम मुतमईन हो गए और एक कि हम फिर आपस में बैठ जाए कि किस चीज में कमी है। दीन के मिटना जबरदस्ती अपने आप को बंदा फिक्रमंद करे कि हर जगह अल्लाह के अहकामात मिटे हुए हैं, सुन्नत जिंदगी मिटी हुई है, उसकी वजह से जो नहूसत है और जो मुसीबतें और जो परेशानियां हैं उसके दूर होने का जरिया, दुनिया और आखिरत में इन मुसीबतों से बचने का जरिया दीन के अलावा और कुछ हो सकता है? और दीन की मेहनत अगर नहीं है तो दीन जिंदा हो जाएगा। इसलिए अपने को देखे, बाहर को न देखे कि लोग ऐसे हैं, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं बैठ रहे, लोग बात नहीं सुन रहे। लोगों से कहना तो बतौर तरगीब है हर एक सिफत, और अपनी जात के एतबार से करना बतौर तकलीफ है, इसका मैं मुकल्लफ हूं, इसका मेरे से पूछा जाएगा। लेकिन दूसरे के बारे में क्या है? तरगीब है दूसरे के बारे में। तो अपनी जात के एतबार से करना ये हमारी जरूरत और हमारी हाजत है। इसलिए अपने कमियों को देखे कि हमारे तस्बीहात में, रात के उठने में, अल्लाह से मांगने में, या अपने कारोबार में, या खर्च करने में, या अपने दूसरे जो अमाल है उसमें कमी हुई है या नहीं हुई। तो अगर गुनाह का काम हो रहा है और सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा है तो दीन की मेहनत इसलिए ताकि हमारे अंदर सुन्नतें जिंदा हो जाए, हमारे अंदर दीन जिंदा हो जाए। ये मेहनत दीन के इहया के लिए है, दीन के इहया के लिए। तो आपने देखे उसमें जो भी कमी है आपस में ताल्लुक, मोहब्बत, जो कमी है उस कमी को दूर कर दिया जाए और आइंदा हफ्ता पूरी मेहनत करके जमात निकालने की कोशिश की जाए। तो चलो दूसरा हफ्ते न हो, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, महीने में एक जमात निकल जाएगी, 2 महीने में जमात निकल जाएगी। लेकिन अगर इसका फिक्र न हो तो फिर साल गुजर जाएगा और जमात का निकलना आसान नहीं होगा बल्कि मुश्किल होगा। तो इसलिए सिर्फ गश्त बराए गश्त नहीं है बल्कि दकत जमातें निकालना, इसकी कोशिश हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अगली बात यह है कि इस डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये बात न भूल जाए कि ये जो तुलबा और असातिज़ा हैं स्कूल और कॉलेज के, तो एक जमात उनके लिए बना दे, वो वहां जाकर उनके साथ पूरी बात करे। ये मुख्तसर बात नहीं जैसे मुतकल्लिम बात करके लाता है, उनके घर पर बैठकर उनसे पूरी बात हो, लेकिन इतनी लंबी भी ना हो कि नमाज भी चली जाए और बयान में भी नहीं,
उसको अपने साथ मस्जिद में लेकर आए ताकि वो नमाज में भी शरीक हो और मस्जिद के उसमें बयान वगैरह में भी क्या हो, शरीक हो जाए। तो इस तरह हम पूरे मोहल्ले को तरतीब दें। एक बात और अर्ज करनी है, वो ये कि इन आमाल के लिए मशवरा कब करना है। ये जो मस्जिद की जमात गश्त करेगी तो बाज़ वक़्त ये बारह में वो अर्ज करने की कोशिश, जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, क्या हो रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन मुज़ाकरा तो इसका होता है कि होना क्या चाहिए। तो होना ये चाहिए कि असर के बाद गश्त है और मगरिब के बाद बयान है, तो असर से पहले इस पूरी जमात को जमा होना चाहिए और जमा होकर ये अपने आमाल को तकसीम करे, अपने अमाल को मशवरा करे और अपने अमाल को तकसीम करे। इस तरह अमाल को पूरी जमात है अमल से पहले और पूरी जमात ने आपस में मशवरा करके गश्त की तरतीब बना दी। तो ये तो अपने हफ्ते में एक दफा मस्जिद के वो गश्त है, लेकिन ये गश्त जिसे मैंने पहले अर्ज किया, जमातें ज्यादा हो, दिन तो एक है, ये उमूमी गश्त है, लेकिन एक जमात के बजाय दो जमातें, दो के बजाय फिर तीन हो जाए। अब हर साल हम कारगुजारी सुनाते हैं, तो हल्कों में भी सुनाते हैं और यहां भी सुनाते हैं, तो उससे जरा इतनी बात अगर आ जाए आइंदा साल या हल्कों में कि पिछले साल मसलन हमारे बैरूनी गश्त मस्जिद, अपने मस्जिद में जो जमातें बनती थी उमूमी गश्त, तो दो जमातें बन जाती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 जमातें बनती हैं, अब 5 जमातें बन जाती है, 6 जमातें बन जाती हैं, उस मस्जिद के साथ जितने घर है उनके घर। तो ये एक तरक्की है। ये क्या है? एक तरक्की है कि काम के शक्लों में भी बंदा क्या है, आगे बढ़े। और ये एक दलील है इस बात की कि और लोग भी इनके साथ शरीक हो रहे हैं। इसलिए ये 4-5 बंदों का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का बहैसियत मुसलमान होने के जिम्मेदारी है और काम है। इसके साथ एक और बात अर्ज करते हुए कि ये जो हमारा दूसरा गश्त है ये भी हफ्ते में है, लेकिन एक गश्त है मुकाम पर और एक गश्त है बैरूनी। ये जो बैरूनी गश्त है तो इसमें वसी मशवरे की जमात इसको देंगे कि हमारे करीब कितनी मस्जिदें हैं जिसमें जमात बनी हुई है, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें जमात बनी हुई नहीं है, बनी हुई नहीं है। या 2-4 बंदे तो थे या है भी, लेकिन अब वहां कोई काम नहीं हो रहा है, मस्जिद के काम में से कोई आमद नहीं हो रहा है, काम बहुत कमजोर है। तो अब हमारे जो दूसरा गश्त है वो जहां काम नहीं है वहां जमात बनाना काम है, जमात बनाना काम है, और जहां कुछ कमजोर है उनको तक़वियत देना काम है ताकि वो काम पर पड़ जाए, वो काम पर पड़ जाए। अब ऐसी जगहों को तलाश करना और ऐसी मस्जिदों में अपना बैरूनी गश्त रखना, अगर ये होगा अपने हफ्तेवारी मशवरे से, ताकि सबके सामने हो कि कौन सी मस्जिद में किनका जरूरत, इनकी भी अपनी राय होगी, इनकी भी अपने फिलहाल मस्जिद में हमारी जमात दूसरा गश्त शुरू कर ले। अब दरखास्त यह है कि जिस तरह जमात वहां पर कैसी बनेगी, तो जमात वहां पर बनेगी रोजाना मेहनत से, रोजाना मेहनत से। जिस तरह अपने मस्जिद की जमात रोजाना मेहनत करती है अपने मोहल्ले में, तो अगर साथी ज्यादा हैं, 10-15 साथी हैं, तो 2 साथी 4 साथी, उनको रोजाना की जो मेहनत है 2.5 घंटे या रोजाना घर घर की मुलाकात हो, उसमें उनको उस मोहल्ले में भेज दिया जाए। अब बजाय ये दूसरे मोहल्ले में काम कर रहा है, लेकिन ये हमारी मस्जिद की जमात का काम है। अगर ये दूसरी मस्जिद में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी मस्जिद की जमात का काम है कि वहां 2 साथियों की जमात भेज दें, 4 साथियों की जमात भेज दें, रोजाना वहां घर घर पर मुलाकातें, जैसे पहले बात अर्ज की, ताकि लोगों को तैयार कर ले अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए और मस्जिद में काम के लिए, और उनको बता दिया जाए कि हमारा फिलहाल दिन यहाँ पर उमूमी गश्त होता है, ये अमाल होते हैं, इसमें आप ज़रा शिरकत कर लिया करें।
रोजाना हो सके बहुत अच्छा, वरना हफ्ते में 2-3 दिन हो जाए। ये भी ना हो सके तो जिस दिन गश्त है उससे एक दिन पहले तो जरूर वहां पर मुलाकातें हो जाए, ताकि लोगों से बातें भी की जाए, उनसे इरादे भी लिए जाए। एक फितरी बात है, जिससे बात की जाती है उसको फिर बात याद रहती है कि आज कल वो साथी आए थे, उन्होंने ये वक्त मेरे से मांगा है, मैंने तो उनसे कहा है कि मैं इंशाअल्लाह शिरकत करूंगा, अब ये वक्त मैं किसी और जगह नहीं दे सकता। ये पहले से वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होता है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि वहां इन 2-2.5 घंटे में जो रोजाना का काम है, इसमें वहां पर जाकर वहां मुलाकातें हो, वहां मुलाकातें हो। अच्छा, मुलाकातें हो। फिर जब उमूमी गश्त है, जिस दिन गश्त है उस दिन क्या किया जाए? जो ये मस्जिद की जमात है, जिसने जाना है, तो एक सूरत है ना कि कोई असर में पहुंच गया, कोई मगरिब में पहुंच गया, कोई इशा में पहुंच गया वहां, और एक ये कि पूरी जमात जिस तरह अपने मस्जिद के महल्ले का गश्ता और ये साथी जमा हुए थे मस्जिद में, तो इस तरह ये पूरी जमात मस्जिद में जमा हो जाए। जमा होने के बाद ये जमात की शक्ल में वहां पर जाए, उस दूसरे मस्जिद में जमात की शक्ल में जाए। वहां पर जाकर उस गश्त से पहले वहां जिन्होंने इरादे किए थे, या मसलन जिन साथियों का औकात लगे हुए हैं 1-2 साथी, लेकिन वो पूरा काम नहीं कर सकते अपने वहां माहौल न होने की वजह से, तो उनके साथ मुलाकातें करें, तो उनको अपने साथ मशवरे में शरीक किया जाए। अब ये जो मशवरा है, ये वहां जो साथी तैयार है उनको भी साथ शरीक कर लिया और खुद भी, और अब वहां की तरतीब बना दिया जाए कि यहां के अमाल की तरतीब बने। तो यहां भी एक जमात है, तो कोशिश की जाए कि यहां जमात बने। अब जमात बनने के लिए आमतौर पर जो बताया जाता है कि 2 महीने वहां पर काम करें। 8 गश्तें तकरीबन, 8 गश्तें, तो एक महीने में कितने गश्तें होती हैं? 4, तो तकरीबन 7-8 गश्तें वहां पर मेहनत करें, और उसमें कोशिश की जाए कि यहां से जमात तैयार हो जाए। 7 चिल्ले के लिए, 3 चिल्ले के लिए, वरना कम से कम 3 दिन की जमात तो तैयार हो जाए। उस जमात को फिर ये मस्जिद की जमात अपने साथ ले जाए और उन पर आगे मेहनत कर ले, ताकि इस काम के साथ मुनासिबत पैदा हो जाए। और अपने साथ जो भी तैयार हो रहे हैं, तो वहां जो हमारे साथी उस मोहल्ले में काम करने जाते हैं, तो इन साथियों को अपने साथ शरीक करें, ताकि वो भी रोजाना मुलाकात में क्या हो, शरीक हो। इसलिए दरखास्त है कि वहां वालों को यह कह देना कि आप यहां काम नहीं है तो आप हमारे यहां जुड़े, आप हमारे यहां जुड़े, आपके यहां काम नहीं है, तो इससे वहां काम हो उठ जाएगा। और एक हम उनकी मुआवनत करें, उनके लिए जमात बना दें, और जमात इसी तरह बना दें, रोजाना मुलाकातें या गश्त से पहले एक दिन मुलाकातें, कोशिश हो तो, ताकि वहां जमात बने। अब हमारी मस्जिद की जमात एक जगह बिरूनी गश्त कर रही है, एक जगह बिरून, लेकिन जिस तरह अपने मोहल्ले में 2 जमातें बनती हैं, 3 जमातें बनी, 4 जमातें बनी, 5 जमातें बनी, इस तरह बिरूनी गश्त के लिए भी जमातें कितनी बने? काम जब आगे बढ़े तो 2 जमातें बन जाए, 3 जमातें बन जाए, 4 जमातें बन जाए, ये सब बिरूनी गश्त तो है एक दिन में एक, लेकिन मुख्तलिफ मस्जिदों में इस मस्जिद की जमात का गश्त होगा। जिस मस्जिद में साथी ज्यादा है और उनकी 8-8, 10-10 साथियों की जमातें बन सकती हैं, तो अब दूसरी मस्जिद में, तीसरी मस्जिद में, इस तरह ये एक मस्जिद की जमात कितनी मस्जिदों में काम उठा सकते हैं, बशर्ते कि इस मस्जिद में क्या हो, मस्जिद में काम हो। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बाज वक्त बाज जगहों में, बस्तियों में, वो कहते काम तो है नहीं, तो एक जगह से 2 ले लेते हैं, दूसरी जगह से 1-2 ले लेते हैं, तीसरी जगह से 1-2 ले लेते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों से 3, 4, 5, 7, 8 की जमात बन जाती है। कहते अब ये पूरे शहर के मस्जिदों में फिरेगी और वहां काम उठाएगी। भाई हमारे यहां मस्जिदों में काम उठाने के लिए जो रास्ता है पहले से चला आ रहा है, वो अपने मस्जिद का दूसरा गश्त है, वो अपने मस्जिद का दूसरा गश्त है। अब जितनी मस्जिदों में आप काम करें जमातें, और
اپنے روزانہ کی محنت سے اگر ساتھی زیادہ ہے آپ کے، ہر مسجد میں آپ دو ساتھی بھیجتے تو بظاہر یہ دوسرے محلوں میں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے مسجد کی جماعت کا کام ہے، وہ آپ مسجد کی جماعت محنت کر رہی ہے اور دوسرے مسجدوں میں کام اٹھا رہا ہے۔ تو اس طرح کوشش کی جائے تاکہ ہر مسجد میں جماعت بنے اور کام شروع ہو جائے۔ تو گویا یہ پوری جماعت مشورے میں بھی شریک ہو، یہ پوری جماعت یہ روزانہ کی ملاقاتوں کی ترتیب ہو، یہ پوری جماعت تعلیم میں بھی شریک ہو، اور اس پوری جماعت کے گھر گھر میں تعلیم بھی ہو، اور ساتھ ساتھ مشورے مقامی گشت بھی ہو، بیرونی گشت بھی ہو، اور اس کا ہر ایک فرد قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہو، ذکر بھی کر رہا ہو۔ یہ سب مسجد میں ہے، ذکر کر رہا ہے مسجد میں، قرآن پاک پڑھ رہا ہے مسجد میں، نفلوں کا اہتمام کر رہا ہے مسجد میں، دعا مانگ رہا ہے مسجد میں، رات اٹھ کر اللہ پاک سے مانگ رہا ہے کس میں؟ مسجد میں۔ اچھا، اور جماعتیں جمع ہو رہی ہیں بیرونی گشت کے لیے مسجد میں، پھر مسجد سے دوسرے مسجد اپنے مقامی گشت پر جماعت جمع ہو رہی ہے مسجد میں، وہاں پر مشورہ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے سب کام مسجد کے ساتھ مربوط ہے، اور یہ مسجد کے لیے وقت ہے، اور اسی میں اس وقت کو صرف کرنا ہے اور وقت آگے بڑھانا ہے اس مختلف شکلوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور کرنی ہے، وہ ہے کہ سے روزہ مہینے کی، تو اب یہ جو روزانہ مشورہ ہوتا ہے، ان ساتھیوں کے جو دو ساتھی یا تین ساتھیوں کی جوڑیاں بنی ہیں جنہوں نے روزانہ ملاقاتیں کرنی ہیں، تو انہی تین ساتھیوں نے یہ اپنے ہفتے تقسیم کر لیں۔ مثلا یہ تین ساتھی ایک ہفتہ میں، یہ تین ساتھی دوسرے ہفتے میں، یہ تین ساتھی تیسرے ہفتے میں، یہ تین ساتھی چوتھے ہفتے میں، اور اب پورا مہینہ انہوں نے 27 دن کام کرنا ہے اپنے ساتھ جماعت تیار کرنے کے لیے۔ جیسے چلے کے تقاضا چل رہا ہے، تو کم از کم سروزے کی جماعتیں تو کام پر وہ جمے گا جو صرف یہ نہیں کہ اس کا سروزہ لگ رہا ہے، بلکہ وہ سروزہ کے لیے جماعت تیار کرنے میں لگا رہتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس کا سالانہ چلہ لگ جاتا ہے، بلکہ یہ سالانہ چلنے کے لیے جماعت تیار کرنے میں لگا رہتا ہے اپنے مقام پر، اور ان کے وصولی تو مقام پر ایسی محنت کر کے اپنے ساتھ ساتھی تیار کر لیں۔ تو یہ تین ساتھی پرانے ہوں گے اور ان کے ساتھ 7-8 ساتھی نئے، دوسرے ہفتے میں 3 ساتھی پرانے، 7-8 ساتھی نئے، تیسرے ہفتے میں اس طرح نظام بنا دیا جائے۔ وقت مقررہ پر یہ سب کے وقت مقرر ہے، مشورے کا وقت مقرر ہے جو بھی آسانی سے ہو، تعلیم کا وقت مقرر ہے، روزانہ کی محنت کا وقت مقرر، کیونکہ اجتماعی کام ہے، مسجد کے یہ مقامی گشت کا وقت مقرر ہے، بیرونی گشت کا وقت مقرر ہے، اور ساتھ ساتھ سے روزے کا وقت متعین ہو۔ یہ بات کہ پہلا ہفتے میں سے روزہ لگا لیا بہت اچھا، نہیں لگا لیا تو دوسرے ہفتے میں، نہیں لگا لیا تو تیسرے ہفتے میں، ورنہ چوتھے ہفتے میں۔ اچھا، اب ہم خود دیکھ لیں اس بات کو۔ مثلا ہفتہ ہم نے پہلے ایک مہینے میں پہلے ہفتے میں سے روزہ لگا لیا، اب جب دوسرا مہینہ آیا میں نے یہ کہا کہ میں ابھی اس ہفتے میں تیار تو نہیں ہوں، مہینے میں سے روزہ ہے، تو اس مہینے کا تو دوسرا ہفتہ بھی ہے، تو دوسرے ہفتے میں چلے جاؤں گا، دوسرے ہفتے میں بھی میں نہیں گیا۔ اچھا، تیسرا ہفتہ بھی تو ہے، تو میں تیسرے ہفتے میں چلا گیا مثال کے طور پر، تو یہ مہینے میں سے روزہ ہو گیا یا 55 دن کے بعد سے روزہ ہو گیا؟ 60 دن کے بعد ہو گیا۔ مہینہ جب واپس آیا تو مہینہ تو وہ گزر گیا، جو بھی اس کے ساتھ یہ 15-20 دن زیادہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ مہینے میں سے روزہ ہے، مہینے میں کیا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کے لیے وقت کیا کر لے، مقرر کر لے۔ اب قربانی تب وجود میں آئے گی جب وقت مقرر ہو، جب وقت فارغ ہوں تو اس ہفتے میں ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، یہ بھی ایک شکل ہے۔ اور ایک جو وقت میں نے مقرر کر لیا ہے، اس وقت اگر گھر کا تقاضا ہے، اس وقت اگر کاروبار کا تقاضا ہے، جیسے مشورے میں، تعلیم میں، روزانہ کی محنت میں، گشتوں میں، تو اس وقت اس کو کیا کرنا ہے؟ مؤخر کرنا ہے، تو یہ قربانی بنے گی، یہ نکلنا قربانی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر روزے کو مؤخر نہ کیا جائے، روزے کو مؤخر نہ کیا جائے، اس طرح قربانی کے ساتھ
से रोजा लगे। अच्छा, जिन साथियों को हम लेकर गए, देखें कि कहां जाना है, तो करीब बस्तियों में, जिन बस्तियों में जमातें बनी हुई नहीं है, जिन जगह काम नहीं है, तो काम उठाने के लिए, जमातें बनाने के लिए ये अपने उसका सिरोजा है, महीने का सिरोजा है। अब एक तरफ ये साथी जो हमारे साथ हैं, 8-10 साथी किसी मस्जिद के हैं, तो ये भी काम वाले बने। तो काम वाला बंदा तब बनता है जब काम 2-3 साथी जो मेहनत करे, कोशिश करे। तो ये रोजाना के वक्त के एतबार से इसमें एक बात अर्ज कर लूं। अब हो यानी जो वक्त जिसको मिले, असर से इशा है तो ठीक है, कोई जोर से असर ठीक है, कोई मगरिब से, लेकिन ऐसा कोई हमने ऐसा निजाम मुरतब नहीं करना है कि मसला असर से इशा जो दे सकता है उसको कहते अच्छा भाई तुम कुछ ऐसा कर लो कि सुबह दो, तुम जोर में दो, तुम किसमें दो, असर में दो, तुम मगरिब से इशा में दो। यानी यही 10-15 जो वक्त दे रहे हैं किसी भी वक्त में, हम उसको जरूर 2-2, 3-3 करके सुबह से लेकर शाम तक बना दे, ताकि यानी हर वक्त काम चले। बात वाज़ेह। एक ये है कि मसलन 5-7 आदमी असर से इशा दे सकते हैं, 2-4 है वो कहते हैं हम जोर से असर हम दे सकते हैं, असर से इशा नहीं दे सकते। शायद 2-3 ऐसे हो जो कहते हैं ना हम जोर के बाद दे सकते हैं, ना इशा असर से इशा दे सकते हैं, हम फजर में दे सकते हैं। तो जो जिस वक्त दे सके उसके वक्त को कबूल कर लेना, बस। ये हमारे किताब में नहीं है, ये वक्त में हमें कबूल नहीं है। और जितना दे, जितना तरगीब तो हमारी वो है जो बात अर्ज की जाती है, लेकिन जितना दे, अगर कोई आधा घंटा भी देना चाहे, अगर कोई 10 मिनट भी देना चाहे रोजाना के एतबार से, तो इस 10 को हम कम न समझे, दीन का थोड़ा भी बहुत होता है। और इसको हम हकीर न समझे कि अच्छा दुनिया के लिए तो इतना दे रहे हो और दिन के लिए इतना। ये 10 मिनट इसको आहिस्ता 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 जब ये मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, ये आगे बढ़ता चले जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, और शायद ये औरों से भी आगे बढ़ जाए। तो एक बात ये अर्ज कर दी। अब हमने ये जो दावत का काम है, इसमें इन्फिरादी मुलाकातें हैं। ये हमारा रोजाना की मेहनत में क्या करना है, तो उसमें मुलाकातें हैं। ये इन्फिरादी तौर पर दावत है, 2-2, 3-3 की जोड़ियां बनाकर इनको काम दिया जाता है। काम क्या दिया जाता है कि जो मस्जिद के साथ जितने घर हैं, मिसाल के तौर पर 4 गलियां हैं, एक गली में 50-50 घर हैं, 40-40 घर हैं। अब ये जो हमारे साथियों ने जो वक्त दिया है, जो 12 साथी हैं, तो इनकी 2-2, 3-3 की जमात बन गई इन 4 गलियों के लिए या 5 गलियों के लिए जमात बन गई। अब इन 2-3 बंदों का काम क्या है कि ये काम इनको दे दिया गया, रोजाना मशवरा इस मामले में उसकी जरूरत नहीं है कि आज ये 2-3 साथी मुलाकातें किन से करें, बल्कि उनको गलियां तकसीम हो गई, घर तकसीम हो गए, तो अब ये घर घर पर मुलाकातें करें और अगले दिन मशवरे में उन मुलाकातों की कारगुजारी सुना दिया करें। 50 घर थे, कल हम उनमें से
2 घरों वालों से मुलाकातें हो गई। फिर उसमें अगले जो तश्कीलें हुई वो भी बता दे। फिर अगला इस तरह, ताकि ये 15 दिन में, 20 दिन में मौका माल के एतबार से, लेकिन ये अपनी मुलाकातें पूरी कर लें, अपनी मुलाकातें पूरी करें, कोई घर न छोड़े। उमूमियत रखें, ऐसा ना हो कि बास घर मखसूस है, जब भी जमात आ जाती है वो बंदे भी मखसूस है, उन्हीं के पास लिया जाता है यानी गश्त में, और उन्हीं से आगे मुतालबे होते हैं, वही तैयार भी हो जाते हैं। तो और खुद भी बाज मखसूस जगहों में सिर्फ काम करना, मकसूद है उम्मत बनाना। हमारी कोई जमात नहीं है, ये काम बहैसियत मुसलमान होने के और उम्मती होने के हैं। इसलिए घर घर की मुलाकातों की तरतीब बनाना। अब इसमें अगर एक बंदा आ गया मस्जिद में, अब ये जो मशवरे का वक्त है ये भी मस्जिद के अमाल में से अमल हो गया। ये आ जाए मस्जिद में, एक आ गया दूसरे के इंतजार कर रहा है, तो उस इंतजार में 2 रकात पढ़ ले, दुआ मांगे, कोई जिक्र करे, कोई तिलावत करे, क्योंकि सब मस्जिद के काम हैं, मस्जिद के काम है। दूसरा साथी आ गया, इनकी जमात बन गई, अब ये अपने काम पर निकल जाए मस्जिद से और दुआ मांगे। वजह यह है कि बाकी काम जितने हैं उमूमी तौर पर वो तो मस्जिद ही के अंदर है, तालीम मस्जिद के अंदर है, सीखना सिखाना मस्जिद के अंदर है, तिलावत और जिक्र मस्जिद के अंदर है। इस तरह जो, और ये जो काम है ये मस्जिद से बाहर के माहौल में है, और बाहर का माहौल फिजा वो दुनिया का माहौल है। तो उस माहौल से अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हमारी हिफाजत करे और अल्लाह की मदद साथ हो जाए, उसके लिए अल्लाह से मांगना होता है, ताकि हम बाजार के माहौल में, घर के माहौल में, बाहर के माहौल में जा रहे हैं, तो उसमें अल्लाह पाक से इस्तिआनत हो, अल्लाह से मांगना हो, और अपने अस्कार उसका एहतमाम हो, नजरों की हिफाजत वगैरह आदाब इनका एहतमाम हो। कोशिश इस बात की जाए कि उस घर का जो जिम्मेदार है, बड़ा है, जिस पर जिम्मेदारी है अपने अहल अयाल के दीन पर आने की, यह उसकी जिम्मेदारी है। वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम से बचा दो, और जहन्नम से दीन के बगैर नहीं बच सकता है कोई, और दीन सीखे बगैर नहीं आ सकता है, दीन सीखे बगैर नहीं आ सकता, दीन के बगैर जहन्नम से कोई बच नहीं सकता, और जहन्नम से बचने के लिए, बचाने के लिए मेहनत करना, ये हर बड़े की जिम्मेदारी है, अपने घर के जिम्मेदार की, कि इसकी कोशिश करें। इसलिए उनसे मुलाकात करें, उसमें अगर 1-2 है भाई है उनके साथ बैठ जाए, और वहां बैठकर मौका महल के एतबार से उनसे बात करें। बात हमारी जहां भी है वो है दीन की बात, 6 नंबरों की बात, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो भी और हम भी दीन की मेहनत करने वाले बने, इस मुबारक काम में लगे, तो उसके लिए हमारी बातों में अपने को मुहताज और जरूरतमंद समझकर आखिरत का तस्करा जरूर आ जाए, दुनिया से बेरगबती आखिरत।
اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونا، اور اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، اس کے تذکرہ ہو جائے، اس کی باتیں ہو، اور سنت طریقوں سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دونوں جہانوں میں کامیابی اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن سنت طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں میں ناکامی اگرچہ سب کچھ ہے، اس کے تذکرے آ جائیں، یعنی کلمے والے یقین، اس کی بات ہو۔ اس طرح نماز کی بات، علم اور ذکر کی بات، اخلاق، اخلاص اور اس ذمہ داری کی بات ہو۔ اگر ہم تشکیل اتنا کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ترغیب ہو، ایک اتنی سی بات کرنا، بھائی کچھ دن کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمارے ہاں بھی کچھ جماعتیں نکل رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر سننے کی استعداد ہے اور سن سکتا ہے، وقت اس کا ہے، تو ہم ان سے بات کر لیں۔ اس بات میں 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی بیان نہیں ہے، اس میں آپ بھی بات کریں گے، وہ بھی بات کرے گا، کچھ اپنا کچھ کہے گا، تو سننا بھی ہے، ان سے بات بھی کرنی ہے۔ یہ بات کر کے چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کام بنے گا قربانی سے، اور قربانی وجود میں تب آئے گی کہ جب خروج وجود میں آ جائے۔ اس لیے ان سے ان کے سامنے تقاضا رکھ لیا جائے، ہو گیا 4 مہینے، چلہ 3 دن، یہ خروج کے اعتبار سے ہے کہ اس کے لیے وہ تیار ہو، تیار اس وقت نہ بھی ہو، لیکن اس کا ارادہ آ جائے گا کہ میں انشاءاللہ 3 چلنے کے لیے 2 مہینے کے بعد تیار ہوں، 3 مہینے کے بعد تیار ہوں۔ اب یہ جماعت بھی دیکھے کہ اس کا سالانہ خروج کب ہے، اس کا اپنا سالانہ خروج نکلنا کس مہینے میں ہے۔ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تو گویا ان کے ساتھ جماعت تیار ہو رہی ہے چلہ 3 چلے کی، اور یہ اپنے ساتھ اپنے مسجد سے جماعت تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دن میں جماعت نہیں بنتی کہ یہ تقاضا ہو گیا کہ اب جماعت بنے، نہیں، ان سے آپ ارادے ہو گئے اور کوشش کی جائے کہ تیار ہو جائے۔ اس طرح سے روزے میں بھی، اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہو کہ مسجد کے اعمال کے لیے ان سے وقت لینا، تو بات تو ہم نے وہ ذکر کی بات کی، تو ذکر میں بھی وقت لگا دینا چاہیے، تلاوت کی بات بھی کی، تعلیم کی بات بھی کی، اس طرح ان سب اعمال کی بات کی، یہ سب مسجد کا کام ہے اور مسجد کے اعمال ہیں، اور انہی اعمال میں وقت دینے سے انسان بنتا ہے۔ لیکن ہمارے مسجد میں جو اجتماعی اعمال ہیں، مثلا مشورہ ہے، روزانہ کی محنت ہے، دعوت کی جو جوڑیاں بنتی ہیں، مسجد میں تعلیم ہے، مقام پر گشت اور بیرونی گشت ہے، اپنے سے روزہ جس ہفتے میں جماعتیں نکلتی ہیں مختلف، تو یہ ان کے سامنے رکھ لیا جائے۔ تو جس طرح وہاں وہ ارادے کرتے کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، میں 3 چلنے کے لیے تیار ہوں، اسی ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں سے روزے کے لیے تیار ہوں، اس کے ساتھ اس کے ارادے آ جائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ، آپ جو فجر کی نماز کے بعد مثال کے طور پر مشورہ کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ مشورے میں بیٹھوں گا، میں آپ کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں شرکت کروں گا، میں روزانہ زیادہ وقت تو نہیں دے سکتا، لیکن 15 منٹ دے سکتا ہوں، 15 منٹ آپ کو میں دے سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مقام پر گشت میں شرکت کروں گا، بیرونی گشت میں شرکت کروں گا۔ اس طرح یہ نکلنے کے اعتبار سے بھی تشکیل اور اپنے مقام پر بھی تشکیل، یہ ان کے سامنے آ جائے۔
कम अज कम इतनी तश्कील तो जरूर वजूद में आ जाए कि ये बंदा मस्जिद में जमात के साथ फर्ज नमाज अदा करे। अगर कोई कमी बेशी है तो इतनी बात जरूर आ जाए कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज का एहतमाम करें। अब इसको एक उन्वान बनाकर हमने बात नहीं करनी है कि नमाजी बनाने हैं, हमने इस के नमाजी बनाना है, रोजेदार बनाना है, ज़कात देने वाले बनाना है, हाजी बनाने हैं, बनाना है, सब पूरे अहकामात जिंदा हो जाए। इसलिए हमने तो पूरे दीन की बात की, पूरे अमाल की बात की। उसके साथ ये बात के इंशाअल्लाह 3 महीने के बाद जब ये निकलेगा तो फिर नमाज पढ़ेगा, नमाज तो भी फर्ज है, या फिर नमाज सीखेगा, जब चिल्ले के लिए निकलेगा, जब से रोजे में जाएगा, तो ये मुनासिब नहीं है। इसलिए आखिरी तश्कील ऐसा हो कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ें और सीखने की जरूरत हो तो मस्जिद के इमाम से नमाज सीखे। उलमा के साथ मरबूत करना कि अपने मस्जिद में अंदर जो कारी साहब है, इमाम साहब है, उससे नमाज सीखे, नमाज का एहतमाम करें और पूरे घर वालों को इस पर आमादा करें कि इसके बच्चे और साथ साथ घरों में भी उसकी बात हो जाए कि इसका एहतमाम हो। तो ये घर घर की मुलाकातें हैं, ये हमारे एक मुस्तकिल तकाजा है जो रोजाने का है, जो रोजाने का है। अब बात वक्त ऐसा हो जाता है कि मसलन से रोजे की जमात तैयार हो रही है, चिल्ले की जमात तैयार हो रही है, 3 चिल्ले की जमात तैयार हो रही है खुरूज के एतबार से, तो उस वक्त ये जो हमारे घर घर की मुलाकातें हैं तो इसमें इसको मुकद्दम रख लिया जाए। कब चूंकि जमात तैयार हो रही है तो जिन जिन लोगों ने इरादे किए थे उनको वसूल करना, उसमें उनके पीछे फिरना, उनको आमादा करना, इसको तरजीह दे दिया जाए, इसको तरजीह दे दिया जाए। चिल्ले की जमात तैयार हो रही है तो अब हमारे गश्तों के जो मुलाकातों के जो उन्वान हो तो उसमें ये हो कि जिन्होंने इरादे किए हैं तो उनको वसूल करने के लिए उनके पास जाना ताकि वो वसूल हो जाए, इसमें कोशिश खूब हो जाए, खूब हो जाए। या मसलन बाद में इरादे किए थे कि हम आएंगे, आपके साथ मशवरे में शरीक होंगे, लेकिन नहीं आए, तालीम में बैठेंगे लेकिन ना आ सके, उमूमी गश्त में शरीक होंगे हमने लेकिन ना आ सके, तो हमें भूलना नहीं चाहिए, हम उनको सामने रखकर दोबारा उनके साथ मिले और उसको या दहानी दे बल्कि अमल से पहले, ताकि वो उनका आना यकीनी बन जाए। तो इस तरह वक्ती तौर पर कोई तकाजा है उसको मुकद्दम करना, उसको, और उमूमी तौर पर जो बुनियादी है वो ये है कि घर घर की क्या हो, मुलाकातें हो, घर घर की मुलाकातें हो और लोग उनको तैयार करना इन आमाल के लिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। या बात वक्त मरकज से तकाजा आ जाता है कि जोड़ है, कोई तकाजा हमें दे दिया तो उस वक्त उन तकाजों को जरा मुकद्दम कर लिया जाए जिनसे मिलना है और जिन तक पहुंचना है, ताकि वो तकाजे हमारे क्या हो जाए, पूरे हो जाए। लेकिन उमूमी तौर पर, बुनियादी तौर पर हमारा जो रोजाना की मेहनत है उसमें ये अच्छा। बात वक्त ऐसा होता है कि मौका तो है लेकिन हमारे 2.5 घंटे पूरे हो गए तो अब घर जाना है। तो भाई ठीक है, आपके 8 घंटे की तरतीब नहीं है और अब वो मुलाकात हो सकती है, तो ये नहीं है कि बस 2.5 घंटे से आगे नहीं पढ़ना, अब वो मुलाकात कर लें, उसमें 3 घंटे लग जाए क्या रहे, 4 घंटे लग जाए तो क्या रहे, हमारा काम है। इसमें अगर कोई कुर्बानी हो तो इस कुर्बानी पर हमें मिलेगा दुनिया में और आखिरत में, छोड़ देना काम नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहते हैं बंदा नहीं मिलता है, तो हमारे 2.5 घंटे, और जिससे के पास गया था वो नहीं मिला,
तो अब इसमें आधा घंटा भी अभी नहीं गुजरा, तो अब घर जाए, इंशाल्लाह कल देखा जाएगा। क्यों? 2.5 घंटे तो मैंने उसके लिए दिए थे, उन 2-3 आदमियों के लिए दिए थे, वो नहीं मिले, तो और उनसे मिलना भी ठीक नहीं है शायद, वल्लाहु आलम। भाई वो नहीं मिले, कोई मिल जाएगा। आप दावत की क्या करें? दावत की बात करें। कोई ऐसा मुरतब नहीं है। अच्छा चलो, कोई ऐसी सूरत है कोई नहीं है, ये नहीं, तो आपका 2.5 घंटे और बंदा नहीं मिला कोई सूरत, तो अब घर जाना है कि कोई है नहीं। ये वक्त मस्जिद के लिए दिया था ना, किसके लिए दिया था? मस्जिद के लिए, या इस एक आदमी के लिए दिया था। ये प्रेरणा तो, ये तो मस्जिद के काम का एक हिस्सा है। दावत तो मस्जिद के काम का क्या है? एक हिस्सा है। तो चलो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये वक्त तुम मस्जिद ही में गुजारो ना। यानी मैं कोई इसकी तरगीब नहीं दे रहा हूं कि उस वक्त में कुछ हिस्सा इधर ले, लेकिन घर जाना या अपने कारोबार में जाना कि जिससे मिलने गया था वो नहीं है, तो अब मैं घर जाऊं। कोई सूरत बनाओ मुलाकातों की, वरना मस्जिद चले जाओ, जिक्र करो, दुआ करो, अल्लाह से मांगो, कोई रोना धोना करो कि अल्लाह जिससे मिलने आया था मिल नहीं सका, किसी से मुलाकात नहीं हो रही है, ये। लेकिन ये वक्त हमने घर को नहीं देना है और कारोबार को। जो मस्जिद के नाम से जो वक्त मैंने फारग कर दिया, तो अल्लाह तौफीक दे कि वो वक्त मस्जिद ही के काम में हो। बात वाज़ेह है। ये नहीं देना है इधर उधर, बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। अच्छा, इसके साथ ये तो हमारे रोज तो हो सकता है महीने में ये मुलाकातें हमारी पूरी हो जाए, 15-20 दिन में पूरे घरों में मुलाकातें हो जाए। इसमें बीच में अगर कुछ ऐसे लोग आ जाएं कि घर तो मेरे गली में है उनका, लेकिन है खवास में से। खवास का मतलब यह है कि उसका पूरे बस्ती पर, पूरे शहर पर, पूरे मुल्क पर उसका असर है और रहता है मेरे मोहल्ले में, और उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। लोग क्या है? जुड़े हुए हैं। तो उनको छोड़ देना तो काम नहीं है ना। अगर हम खुद मुलाकात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम मुलाकात नहीं कर सकते और हमारी मस्जिद की जमात में से जिनके जिम्मे दूसरी गलियां हैं वो कर सकते हैं, तो ये मस्जिद की जमात का काम है कि वो इनसे वकले, वो इनसे मिलने जाए। अगर अपनी मस्जिद की जमात में कोई नहीं है और हमने देखा कि फिलहाल मस्जिद के, उस मस्जिद के साथी ने इनके साथ पढ़ा है, इनके साथ उसमें काम में शरीक है, जान पहचान है, ताल्लुक है, वो बात कर सकता है, वो बात कर सकता है, तो उनके पास पहुंच जाए, उनसे बात करें और उनको तरगीब दें कि वो यहां पर तशरीफ ले आए और इनसे मुलाकात हो जाए, इनसे बात हो जाए। कभी कभी जरूरत पड़ेगी उसको मरकज वालों को भी बता देना कि वो उनके पास तो साथी है कुछ, लेकिन हमारे पास नहीं है। ये कोई भी सूरत इख्तियार किया जाए, लेकिन उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए। इसलिए सबसे मिलना है, उन आदाब के साथ, उन उसूल के साथ मिलना, हर तबके से मिलना है, हर तबके से मिलना है। कोई बात नहीं सुनना चाहता है, हमें पता है कि बात नहीं सुनता, बात नहीं सुनता, तो अगर बीमार हो जाए तो इयादत करने से तो नाराज नहीं होगा। कोई खुशी का मौका है तो मुबारकबाद देने से तो नाराज नहीं होगा। कोई गमी का मौका है तो ताज़ियत करने से तो नाराज नहीं होगा। और वैसे ही मिलने से तो कोई ऐसा, अगर वो सुनना नहीं चाहता है तो हमने जरूर तो सुनाना नहीं है, लेकिन उसको छोड़ना काम नहीं है, बल्कि उससे मिलना अल्लाह की निस्बत से, अल्लाह की रजा के लिए, एक मुसलमान होने की हैसियत से। जब बंदा दूसरे मुसलमान से मिलने जाता है तो कहा जाता है हमसे बता कि तू मुबारक, वसाब ममशा का, तेरा चलना मुबारक, वतबव्वअत मिनल जन्नत मंजिला, और तूने अपने लिए जन्नत में इस मुलाकात पर मकान बना दिया। तो इससे तो हमारा मकान बनता है। कहां बनता है?
दुनिया में अगर किसी को कह दिया जाए कि इस्लामाबाद में प्लाट मिल जाएगा, बना बनाया हुआ मकान तुझे मिल जाएगा, सिर्फ उससे मिलने की जरूरत है, तो कोई कहेगा कि मेरा काम है? वहां सिर्फ एक मुसलमान होने की निस्बत से मिलना। इसलिए मुसलमान को न छोड़े किसी हाल में भी, कि किसी हाल में उसको छोड़ना काम नहीं है, मिलना क्या है, मोहब्बत करना काम है। वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की निस्बत से मोहब्बतें करना, मिलना जुलना, बैठना आपस में और एक दूसरे का इकराम करना, यह अल्लाह के साथ ताल्लुक का जरिया है। इसलिए हम इसकी कोशिश कर ले कि इस तरह हम उनसे मिले, मुलाकात करें, कोई घर न छोड़े, घर में कोई फर्क न रहे कि जिससे हमारी बात न हो और इस मुबारक काम की तरफ मुतवज्जे न किया जाए। तो एक काम तो हमारा है मशवरा, ये पूरी जमात का, और जो जोड़ियां बन गई है ये 10-12 साथियों के, मैंने इस वजह से ये कह दिया, वैसे तो सब साथी मस्जिद की, लेकिन एक जमात तो ऐसी हो 15, 20, 10 कि जो हर काम में शरीक हो, जो क्या हो, हर काम में शरीक हो, तो यही साथी वह इनके रोजाना के जमातें बनेंगी। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि रोजाना की जोड़ियां कितनी बनती है, तो कहते हैं कभी 2 बन जाती है, कभी 4 बन जाती है, कभी 8 बन जाती है, कभी 10 बन जाती है, कभी 2 बन जाती है। तो ये तो वही बात हुई ना कि जिनको जो मौका मिल जाता है आ जाता है, जब नहीं आ जाता है काम होता है तो नहीं। तो ये वक्त हमने अल्लाह के घर के दिया है, इसलिए ये वक्त किसी और काम को न दिया जाए, ये रोजाना मुलाकातों की तरकीब का। इसके साथ मस्जिद में तालीम है, ये तो हमारी दावत का काम है, रोजाना बाहर जाकर लोगों से इंफरादी तौर पर बात करके अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना, मस्जिद के अमाल में जुड़ने के लिए तैयार करना, और ये जो अमाल है तिलावत के लिए, जिक्र के लिए, रात को उठकर अल्लाह से मांगना और अपने घर में भी इन माहौल बनाना, इसके तज़किरे करके इनको आमादा करना है, तैयार करना है। हमारे जो दीनी आमाल है, दीनी आमाल है, उन आमाल का ज़ौक़ और शौक बढ़ता चला जाए। हमने तो इसकी तरफ तरगीब दी, लेकिन इन आमाल का शौक हमारे दिलों में क्या है, बढ़ता चला जाए। उसके लिए जो रास्ता है वो क्या है कि जो हमारी फजाइल की किताबें हैं, इसमें आप देखें जैसे इस्लाम में 5 अरकान हैं, कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है और हज है। ये दीनी आमाल है, दीनी आमाल है। ये जो हमारी फजाइल की किताबें हैं, इन फजाइल की किताबों में कलमे की फजीलतें हैं, उसके साथ और भी तस्बीह, तहमीद, तहलील की फजाइल नमाज है, फजाइल रमजान है, रमजान के दिनों में, रमजान से कुछ पहले शाबान में, और फजाइल हज है, और फजाइल सदकात में जो वाजिब सदकात है वो भी, नफली सदकात भी, फर्ज हज, नफली हज, फर्ज नमाज, नफली नमाज, नमाज पढ़ने पर वादे, न पढ़ने पर वहीद है, जमात के साथ पढ़ने पर वादे, जमात के साथ न पढ़ने पर वहीद है, खुशू खुजू के साथ पढ़ने पर वादे, न पढ़ने पर वहीद है। ये हमारे दीनी आमाल है और ये किताबें हैं। अब नमाज में इतना कुरान सीखना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है जिससे उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए। वैसे तो हर मुसलमान के लिए कुरान सीखना कि कम से कम एक पारा रोजाना पढ़े, अगला दर्जा है कि माना समेत पढ़े, लेकिन मैं तो एक कम से कम की दर्जा इतना सीखना तो हर एक पर फर्ज ऐन है कि जिससे उसकी नमाज क्या हो जाए, दुरुस्त हो जाए। और इन्हीं आमाल में तवज्जो और ध्यान का होना, ये इसके अंदर की बातिन की
ایک صفت ہے کہ عمل کے اندر صفت احسان ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو. تو اس لیے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے اور فضائل تبلیغ ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا. اور مسلمان کہاں کرتے، کہاں گرے اور کتنے پستی میں پہنچ گئے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد سبب اور فضائل صدقات اور صحابہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. تو حکایت صحابہ ہے کہ صحابہ کرام کے مرد، ان کی مستوراتیں، ان کے بچوں کے قصے ہیں اس میں. تو حکایت صحابہ. اس لیے ہمارے ہاں تعلیم میں جو انہی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، یہ نکلنے کے زمانے میں بھی ہے اور یہ اپنے مقام پر بھی ہے. تو اتنا سنیں کہ نماز پڑھنے میں دل لگے، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جی لگے. اس لیے فضائل کا شوق ہو، وعیدوں کا خوف ہو. نہ حفظ مقصود ہے کہ ہمیں حدیثیں یاد ہو جائیں، بلکہ اس عمل کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے. فضائل ذکر سننے سے وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو ذکر پر ڈال دے. فضائل قرآن سننے سے اس کی حدیثیں یاد کرنا مقصود نہیں ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو قرآن پڑھنے پر بندے کو ڈال دے، نماز پر بندے کو ڈال دے، نہ عمل پر ڈال دے، عمل پر ڈال دے. تو یہ کب ہوگا کہ جب انسان روزانہ سنے، روزانہ تو بار بار سننا، اور روزانہ سننے کی برکت سے، روزانہ سننے کی برکت سے، بار بار سننے کی برکت سے ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو عمل پر ڈال دے. اب اس عمل میں جیسے نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں اور شوق پڑے، ذکر تسبیحات میں اور شوق پڑے. یہ ہوگا تب کہ جب بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے اور روزانہ سنے، توجہ اور دھیان کے ساتھ. اس لیے انہی کتابوں سے پڑھنا ہے. اور ان میں جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو فائدہ لکھا ہے، تو اپنے فہم پر اعتماد نہ ہو کہ حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں، اس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں. نہ حفظ مقصود ہے، نہ اپنے فہم پر اعتماد، بلکہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے اور وہی ہے. اپنے طور سے اس کو سمجھنا میں یہ سمجھا، تو کیا سمجھے، تو یہ نہیں ہے. اچھا، جب عمل اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے، تو یہ حلقہ اجتماعی طور پر فضائل کا ہے، مسائل کا نہیں ہے. مسائل کا، اس میں نماز کی فضیلت ہے، نماز کے مسائل نہیں ہیں. اس میں یعنی جو روزہ کی فضیلت ہے اس کے مسائل نہیں ہے. اس میں قرآن پڑھنے کی فضیلتیں ہیں لیکن قرآن کے احکام نہیں ہے، تجوید کے جو احکامات ہیں وہ نہیں ہے. تو بندے کو عمل پر ڈال دیں، لیکن عمل ہوگا علم کے مطابق، عمل ہوگا. اس سے یہ فضیلت تب ملے گی جب عمل علم کے مطابق ہو. نماز پڑھنے پر وعدہ تب پورا ہوگا کہ جب وہ نماز علم کے مطابق ہو. تو جب عمل کا شوق اندر پیدا ہو جائے تو اس کا پتہ کیا ہو کہ فارغ اوقات میں، یہ فارغ اوقات میں یہ مسلمان جو تعلیم میں بیٹھتا ہے، یہ باتوں کے، یہ اپنے اس عمل کا علم علماء سے لے. عمل کا علم کن سے لے؟ علماء سے لے. تو علماء سے نماز کا علم لے، وضو کا علم لے، تیمم کا علم لے. یعنی جو طہارت کے متعلق احکامات ہیں، نماز کے متعلق احکامات ہیں، تو وہ علم علماء سے لے، علماء سے لینا.
اور نکلنے کے زمانے میں تو اجمال ہے. نکلنے کے زمانے میں کیا ہے؟ علم اجمالی ہے. اجمال یہ کہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسی کو سیکھا جاتا ہے، جیسے نماز ہے اور وضو، غسل، تیمم یا آداب. اور مقام پر تفصیل ہے. مقام پر کیا ہے؟ کیوں؟ جس طرح نماز کا علم لیا جا رہا ہے اس طرح تجارت کا علم بھی لے علماء سے.